Morning student, this is the class 9 subject social science and this is the chapter 3rd and the topic is drainage. This is the lecture 3rd. Student, in previous lecture we have discussed about drainage meaning, and the meaning of drainage is a river system of an area is called drainage. And in India there are two river systems, Himalaya river and the Peninsular river. And Himalaya river originate from Himalaya and they cover long distance from their sources to the sea, and they carry large amount of sand and silt. And the major Himalaya rivers are Ganga, Brahmaputra and the Indus. And peninsular rivers originate from Peninsula Plateau. Mostly river originate from Western Ghat, and these rivers are seasonal such as Mahanadi, Krishna, Kaveri, Narmada and Tapi. And student, yesterday we have discussed about Himalaya river. And student, let's start our lecture. Student, in yesterday we have discussed about Himalaya rivers such as Indus river and the Ganga river. Indus river originate from China Tibet near Mansarovar Lake, and its length is 2900 kilometer, and it enter into Jammu Kashmir, then it enter Pakistan and drain into Bay of Bengal, drain into Arabian Sea. And student, Ganga river originate from Gangotri glacier and then enter into Uttarakhand, Bihar, UP, Jharkhand and West Bengal, and drain into Bay of Bengal and formed Sundarban Delta, and its length is 2500 kilometer. And student, today we will learn about the Brahmaputra river. And the Brahmaputra river is the Himalaya river. It is most important river of Himalaya river. And then we will learn about the Peninsular river. Peninsular river originate from Peninsula Plateau, and mostly river originate from Western Ghat. And today we will learn about the Narmada river and the Tapi river. So let's start. Firstly we will learn about Brahmaputra river, and firstly we will see the map of India. And firstly you see the location of Ganga, Brahmaputra river and Indus river. And you know, Indus river originate from China Tibet, and it enter into Jammu Kashmir, then in Pakistan and drain into Arabian Sea. And Ganga river, here is Ganga originate from Uttarakhand, enter into UP, Bihar, Jharkhand, West Bengal and drain into Bay of Bengal, and other stream enter into Bangladesh. And here is Ganga, Brahmaputra merge, and its name is Meghna, and after then they enter into Bay of Bengal and form Sundarban Delta. And the student, today we learn Brahmaputra river. Brahmaputra river originates from China Tibet near Mansarovar Lake, and it flow eastward of the country. इसके बाद ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है चाइना तिब्बत से यहाँ से ओरिजिनेट है, उसके बाद ईस्ट साइड में फ्लो करती है, एंड इट एंटर टू अरुणाचल प्रदेश and then Assam, and then it enter to Bangladesh. And student, Namcha Barwa is the mountain peak of India, and it takes U-turn from Namcha Barwa and enter Arunachal Pradesh, Assam and drain off the Bay of Bengal. ब्रह्मपुत्र रिवर भी चाइना तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, लेकिन ईस्ट साइड में फ़्लो करती है और माउंटेन्स के बिल्कुल क्या पैरेलल में फ़्लो करती है. और यहाँ पे नामचा बारवा की जो हाइट है वो है 7757 मीटर है, और नामचा बारवा से यू टर्न लेती हुई अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, फिर असम में और फिर बांग्लादेश में मर्ज हो जाती है, उसके बाद बंगाल में ड्रेनेज हो जाती हैं. तो जो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो मोस्टली केवल असम और अरुणाचल प्रदेश में फ़्लो करती है. और यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर को यहाँ पे चाइना तिब्बत में कहा जाता है संगपो, और अरुणाचल प्रदेश दिबांग, और यहाँ इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है लोहित है, दिबांग और जो है वो ब्रह्मपुत्र मर्ज हो जाती हैं. और यहाँ पे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है, और बाद में गंगा ब्रह्मपुत्र फिर यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं. तो इस वाले जो एरिया, ये वाला जो एरिया, इसको कहा जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र एरिया, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो रीजन यहाँ पे किया जाता है ये वाला, इस एरिया को कहा जाता है. और जो यहाँ पे एरिया है इसको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को नाम को सुंदरबन डेल्टा. It is the largest and fast growing delta of the world. Okay, so let's start first feature of Brahmaputra river system. It rises in
Tibet east of Mansarovar Lake, very close to the sources of Indus and the Satluj. It is slightly longer than the Indus and most of its sources lie outside India. स्टूडेंट, ब्रह्मपुत्र रिवर भी तिब्बत के ईस्ट से मानसरोवर लेक के जो इंडस रिवर थी वो वेस्ट साइड फ्लो करती थी, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ईस्ट साइड में फ्लो करती है, जहाँ से इंडस और सतलुज रिवर भी क्या करती थी, फ्लो करती थी। उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इंडस रिवर से उसकी हाइट, उसकी जो लेंथ है वो क्या है, ज़्यादा है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का जो मोस्टली जो पार्ट है वो इंडस, वो आपका इंडिया से बाहर ही क्या करता है, फ्लो करता है। एंड इट फ्लो ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालय, जो आपके ईस्ट साइड में भी जो हिमालयस हैं उनके बिल्कुल पैरेलल में ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है। ओके, ऑन रीचिंग द नामचा बारवा, नामचा बारवा इज द माउंटेन पीक एंड इट्स हाइट इज 7,757 मीटर। और नामचा बारवा के पास पहुँचते ही ब्रह्मपुत्र रिवर इट टेक्स यू टर्न लेती है, और देन इट इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रो ए गॉर्ज। और जब इंडिया में एंटर करती है माउंटेन को क्रॉस करती हुई, तो वो जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, गॉर्ज बोलते हैं। एक यानी माउंटेन को क्रॉस करती है जो रिवर्स जब क्या होती हैं अरुणाचल प्रदेश से बोलती है, तो वो क्या बनाती है, गॉर्ज बनाती है। तो इस प्रकार जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो नामचा बारवा के पास से यू टर्न लेती हुई इंडिया में एंटर करती है। एंड इट इज़ कॉल्ड दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने के बाद ये इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है दिबांग, लोहित और बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो ब्रह्मपुत्र में मर्ज हो जाती हैं। एंड ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द संगपो इन तिब्बत, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को संगपो के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में जमुना। एंड द लेंथ ऑफ द रिवर इज 3080 किलोमीटर। लेंथ ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इज 3080 किलोमीटर। ओके, जो इंडस रिवर से थोड़ी सी क्या है, ज़्यादा है। इंडस रिवर की लेंथ 2900 किलोमीटर थी, इसकी है 3080 किलोमीटर। एंड इन तिब्बत द रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड सिल्ट एट इज अ कोल्ड एंड ड्राई रीजन। स्टूडेंट, जो तिब्बत का जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, ठंड होती है और ड्राई रीजन होता है, यानी वहाँ पे बारिश वगैरह कम होती है। बारिश कम होने की वजह से जो ब्रह्मपुत्र रिवर जब वहाँ पे क्रॉस करती है, वहाँ से जब ओरिजिन होती है, तो उसमें ज़्यादा पानी और मिट्टी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही वो इंडिया में एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश और असम वाला जो पार्ट है, शिलोंग है, वहाँ पे क्या है, मासिनराम है। मासिनराम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जब ब्रह्मपुत्र उस असम वाले एरिया में आती है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसमें बहुत ज़्यादा वाटर और सिल्ट क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रह्मपुत्र रिवर में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। So in India it passes through a region of high rainfall. Here the river carries a large volume of water and silt. ओके, चाइना तिब्बत में तो जब उसमें ओरिजिन हुआ उसमें पानी और उसमें मिट्टी काफ़ी कम थी, लेकिन जैसे ही वो असम वाले एरिया में आती है और बारिश ज़्यादा होने की वजह से वो पानी है वो सारे रिवर्स में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रह्मपुत्र जो रिवर उसमें सैंड और वाटर और दोनों की क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। एंड ड्यू टू हाई रेनफॉल द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक causing widespread devastation due to flood in असम और बांग्लादेश। और कई बार क्या है, असम और बांग्लादेश में यानी जब एंटर करती है ब्रह्मपुत्र रिवर, कई बार बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से इसके किनारे पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ भी क्या हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, ओवरफ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हर साल कुछ ना कुछ वहाँ पे क्या होती हैं, ह्यूमन बींग्स और प्रॉपर्टीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हैवी रेनफॉल की वजह से ब्रह्मपुत्र रिवर के। और ब्रह्मपुत्र रिवर उसमें माजोली नाम का एक रिवराइन आइलैंड है, जो क्या है, जिस रिवर आइलैंड्स क्या होती हैं, जब रिवर्स अपने अपर कोर्स से लोअर कोर्स की तरफ आता है, तो अपने साथ जो सैंड और सिल्ट वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से लैंड एरिया बन जाता है, और जिस पे जो रिवर है वो उस एरिया को क्या है, कवर करके फ्लो करती है ईस्ट साइड से और वेस्ट साइड से। तो माजोली है वो क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड्स हैं जो ब्रह्मपुत्र रिवर में बनता है। तो स्टूडेंट, दीज आर द फीचर ऑफ ब्रह्मपुत्र river, and Brahmaputra river length is 3080 kilometer. It originates from China Tibet and its flow from east parallel to the Himalaya, and it takes U-turn from Namcha Bawa and it enter to Arunachal Pradesh, then it enter to Assam and drain into Bay of Bengal. And Ganga and Brahmaputra rivers formed Sundarban Delta, and Sundarban Delta is the largest and fast growing delta in the world. Okay student,
And next, student, you see the map of India, and here, okay, this part is called Ganga Brahmaputra area, and Ganga originate from here, okay, and drain into Bay of Bengal, and then Brahmaputra river originate with China, Tibet, and it takes U-turn from Namcha Barwa and takes U-turn and enter into Arunachal Pradesh, then into Assam, and then it enter in Bangladesh, and it is called Jamuna, and drain into Bay of Bengal. इधर गंगा ब्रह्मपुत्र जो है वो आपस में फिर मिलके क्या डेल्टा बनाती हैं. डेल्टा के जहाँ डेल्टा बनता है वो एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल तो एग्रीकल्चर के लिए. तो ये तो था हमारा हिमालयस रिवर. अब हम पढ़ेंगे पेनिनसुला रिवर. जो पेनिनसुला जो रिवर है बेटा वो आपके पेनिनसुला प्लेट्यू में ओरिजिनेट होते हैं. बहुत सी जो रिवर्स हैं वो वेस्टर्न घाट से ही ओरिजिनेट होती हैं, लेकिन जो मोस्टली मेन जो रिवर हैं वो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी हैं. और आपके यहाँ वाले जो पार्ट में वो नर्मदा एंड तापी है. नर्मदा एंड तापी है ये जो रिवर्स हैं. ये आपकी जो नर्मदा है वो मध्य प्रदेश का हार्ट भी कहा जाता है, और जो नर्मदा रिवर है वो विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज के बिल्कुल बीच में है. और ये जो नर्मदा रिवर इसको रिफ्ट वैली कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, दो माउंटेन्स, जब दो प्लेट्स आपस में क्या होती हैं, अलग अलग होते हैं, अलग मूवमेंट में जाती हैं, तो वहाँ पे क्या बन जाती है, रिफ्ट वैली बन जाती है. यानी कि दो प्लेट जब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाती हैं तो वो डिस्टेंस को होता है, उसको होता है रिफ्ट वैली. तो नर्मदा रिवर यहीं पे ऐसे बनी हुई है. नर्मदा रिवर कहते हैं इसको, जो आपकी वेस्ट साइड में फ्लो करती है और अरेबियन सी में ड्रेनेज हो जाती है. ऐसी तापी रिवर जो नर्मदा रिवर के बिल्कुल पैरेलल में फ्लो करती है. और नर्मदा रिवर की जो लेंथ है वो तापी रिवर से ज़्यादा है, और इसका जो ये दोनों जो रिवर वेस्ट साइड में फ़्लो करती हैं. और जो मोस्टली जो वेस्टर्न घाट की जो रिवर्स हैं वो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये आपकी ईस्ट साइड में जाती हैं और बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज हो जाती है. और ड्रेनेज होने से पहले यहाँ बनाती हैं डेल्टा बनाती हैं. जहाँ डेल्टा बनता है वो एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है. तो लेट्स सी फर्स्ट द पेनिनसुलर रिवर. These river formed by Western Ghat which runs from north to south close to the Western Ghat. Peninsular river formed by Western Ghat. मोस्टली जो रिवर हैं वो वेस्टर्न घाट में बनती हैं, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हैं. एंड मेजर रिवर द गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल. जो मेजर रिवर्स हैं जो वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट होती हैं, गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी, और ये ईस्ट साइड में फिर फ्लो करती हैं और बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज हो जाती हैं. और बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज होने से पहले क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं. डेल्टा क्या होता है बेटा, ये ट्राइंगुलर शेप होती है. इट इज़ ए ट्राइंगुलर शेप्ड एलोवियल लैंडमार्क फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ रिवर. जब रिवर जब किसी ओशियंस में या किसी सी में एंटर करने से पहले जो शेप बनाते हैं उसको बोलते हैं डेल्टा. डेल्टा की जो शेप होती है वो ट्राइंगुलर शेप होती है बेटा. एंड द नर्मदा एंड तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर. नर्मदा, तापी, और भी बहुत सारे रिवर्स हैं, लेकिन जो नर्मदा एंड तापी हैं जो बड़ी नदियों में से हैं, विच फ्लो वेस्ट, जो वेस्ट के साइड फ्लो करती हैं और स्टूरीज बनाती हैं. स्टूरीज क्या होती हैं, स्टूरीज होती है, इट इज़ अ वाइडर पार्ट ऑफ ए रिवर. It is a wider part of a river and it is a funnel shaped valley at the mouth of the river where the sea water and the river water meet. यानी कि क्या है, जब रिवर, छोटी जो रिवर्स हैं जब वो क्या होती हैं बड़े वाटर बॉडीज़ में मर्ज होती हैं तो वो क्या बनाती हैं, उनका शेप बढ़ जाता है. तो जब उसका जो शेप है वो सीधा ही क्या होता है, अरेबियन से ड्रेनेज होती है तो वो स्टूरीज बनाती है. जैसे कि वाइडर पार्ट ऑफ ए रिवर, यानी जब उसका एरिया मतलब बढ़ जाता है, द वाइडर पार्ट ऑफ ए रिवर एट द प्लेस वेयर द एट ज्वाइन द सी. यानी कि सी में जाने से पहले जो रिवर्स का जो एरिया वो बढ़ जाता है, वो सीधा ही अरेबियन से ड्रेनेज हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम एस्ट्यूरीज. और नर्मदा और जो तापी हैं वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि वेस्ट के साइड मूव करती हैं, अरेबियन से मर्ज हो जाती हैं. एंड द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर कम्प्लीटली स्मॉलर इन साइज. जो पेनिनसुलर जो रिवर है उनका जो साइज़ है वो हिमालय रिवर से क्या है, छोटा है, क्योंकि इनके जो डायरेक्शन है वो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट ही है. इसलिए ये जो है एरिया जो है वो स्मॉलर है, और यहाँ पे जो रिवर्स है उनकी लेंथ भी क्या है, काफ़ी कम है, और इनमें वाटर और सैंड की क्वांटिटी भी क्या होती है, काफ़ी कम होती है. देखिए यहाँ पे बेटा, ये जो नर्मदा रिवर है ये देखिए वेस्ट में फ़्लो करती हैं, और ये फ्लो करने से पहले यहाँ क्या बनाती हैं,
स्टोरीज बनाती हैं। और मोस्टली जो रिवर्स हैं आपके देखना ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं। केवल नर्मदा जो तापी रिवर है वो वेस्ट में फ्लो करती हैं और अरेबियन सी में ड्रेनेज होती हैं। इसके अलावा जो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी ये जो है आपकी बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज होंगे। एंड द फर्स्ट इज नर्मदा बेसिन। द नर्मदा रिवर राइजेज इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बिल्कुल सेंटर पॉइंट में आपकी अमरकंटक हिल्स है, वहाँ से नर्मदा रिवर क्या करती है, फ्लो करती है। एंड इट्स फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट इन ए रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग। मूवमेंट्स 2 टाइप्स की होती हैं, फोल्टिंग और फोल्डिंग, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट्स में तो प्लेट्स यानी कि रॉक्स आपस में क्या होती हैं, टकराती हैं, टकराने से माउंटेन्स बनते हैं। लेकिन फॉल्टिंग में क्या होता है, जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं या 2 प्लेट्स हैं या 2 रॉक्स हैं एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट साइड्स में जाती हैं, जब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाती हैं तो उनके बीच में गैप बन जाता है, जो क्या बनता है, रिफ्ट वैली। जो एक वैली बनती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। एक गहरी घाटी बन जाती है उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली, जो किसके द्वारा क्या, फॉल्टिंग। तो नर्मदा रिवर है जो आपकी वेस्ट के साइड क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। एंड द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लो थ्रू द डीप गॉर्ज। मार्बल रॉक्स यानी जो वहाँ पे संगमरमर जो चट्टाने हैं, जो संगमरमर पत्थर है वहाँ पे जबलपुर में, वहाँ पे नर्मदा रिवर है वो क्या है, डीप गार्ज बनाती हुई क्या करती, फ्लो करती है। और वहाँ पे है धुआंधार फॉल्स है, धुआंधार फॉल्स है जो क्या है, जो वहाँ फॉल्स हैं जो क्या करते हैं वहाँ पे, वेयर द रिवर प्लंग ओवर स्टिप रॉक। जो क्या है, रिवर्स क्या होती है, चट्टानों के ऊपर से गिरती है, तो वहाँ पे जो एरिया है वो बहुत सुंदर देखने में धुआंधार फॉल्स है। यानी जब रिवर्स में से पानी जब गिरता है ऊपर से नीचे तो वहाँ धुआं सा इकट्ठा होता है, तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। और वहाँ पे टूरिस्ट पैलेस भी है वो। All tributaries of the Narmada are very short and most of these join the main stream at right angles. जो नर्मदा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो काफ़ी छोटी हैं और जो मोस्टली जो हैं जो उसके साथ उसकी ज्वाइन करती हैं वो राइट एंगल में के साथ उसके साथ मिली होती हैं। जैसे हमने पढ़ा था राइट एंगल, हमने पढ़ा था डेंट्रिक पैटर्न, हमने पढ़े थे पैटर्न ऑफ रिवर ड्रेनेज पैटर्न पढ़े थे, जिसमें हमने रेक्टेंगुलर पढ़ा था, डेंट्रिक पढ़ा था, ट्रायलिस पढ़ा था और रेडियल पढ़ा था। तो वैसे ही यहाँ पे राइट एंगल्स बनते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेलिस। यानी आपस में क्या होते हैं, वो जुड़े होते हैं, रॉक्स माउंटेन होते हैं, तो राइट एंगल से उनकी आपस में वो कनेक्टेड होते हैं, तो जो शेप बनते हैं उसको बोलते हैं ट्रेलिस ड्रेनेज। एंड द लेंथ ऑफ द रिवर, इस नर्मदा रिवर की जो लेंथ है वो लमसम 1312 किलोमीटर है। एंड द नर्मदा बेसिन कवर, जो नर्मदा रिवर है वो मोस्टली जो उसका एरिया है वो मध्य प्रदेश गुजरात में क्या करता, फ्लो करता है। उसके बाद वो अरेबियन सी में ड्रेनेज हो जाता है। यानी नर्मदा रिवर का जो पार्ट है वो केवल मध्य प्रदेश गुजरात में ही फ्लो करती है, उसके बाद वो अरेबियन सी में ड्रेनेज हो जाते हैं। तो दीज आर द फीचर ऑफ नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक हिल and its length is 1312 and its flow from west and drain into Arabian Sea and it form estuaries. Okay, and the Narmada basin cover part of Madhya Pradesh and Gujarat. And next is, देखिए बेटा ये वाली देखिए यहाँ पे, और नर्मदा रिवर को हम बोलते हैं हार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। और ये देखिए ये जो नर्मदा रिवर के देखिए अपर वाला जो पार्ट है विंध्या रेंज है और नीचे वाला पार्ट है सतपुड़ा हिल्स हैं। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो ये है वो है नर्मदा रिवर है, जो आपकी नर्मदा रिवर जो यहाँ पे इस वाले पॉइंट से यहाँ अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट होती है और ये फिर वेस्ट साइड में फ्लो करती है। और इसकी जो ये है ये रिफ्ट वैली से बना है कि जब 2 प्लेट्स आपस में एक दूसरे से अलग हो जाती हैं तो उससे क्या बनी है, नर्मदा रिवर, जो आपकी वेस्ट साइड में फ्लो करती हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे तापी रिवर। तापी रिवर जो है आपके सतपुड़ा हिल से जस्ट नीचे तापी रिवर है, जो बिल्कुल नर्मदा रिवर के क्या है पैरेलल में फ्लो करती हैं और ये भी क्या अरेबियन सी में ड्रेनेज हो जाती है। देखिए तापी बेसिन, द तापी राइजेस इन सतपुड़ा रेंजेस। तापी है वो सतपुड़ा रेंजेस में ओरिजिन होता है इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जो सतपुड़ा रेंज है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट का वहाँ से तापी जो रिवर है वो क्या ओरिजिनेट होती है। इट आल्सो फ्लो ए रिफ्ट वैली, ये भी क्या है रिफ्ट वैली है।
पैरेलल टू द नर्मदा बट इट मच शॉर्टर इन लेंथ, इट्स लेंथ इज 724 किलोमीटर। ये भी नर्मदा रिवर के बिल्कुल पैरेलल में फ्लो करती है, ये भी रिफ्ट वैली है और इसकी जो लेंथ है वो नर्मदा रिवर से काफ़ी कम है एंड इट्स लेंथ है 724 किलोमीटर। और जो तापी जो रिवर है वो तीन स्टेट को कवर करता है, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, और उसमें फिर ये भी वेस्ट साइड फ्लो करती है और वेस्ट साइड से फ्लो करती हुई ये भी अरेबियन सी में ड्रेनेज हो जाती है। एंड द कोस्टल प्लेन बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी आर वेरी नैरो। देखिए आपका जो वेस्टर्न घाट के जो बीच में, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में काफ़ी कम डिस्टेंस है। कम डिस्टेंस होने की वजह से जो ये रिवर्स हैं वो क्या होती हैं, काफ़ी छोटी होती हैं। एंड द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट्स, जो कोस्टल एरिया जो ये रिवर्स हैं वो उनका एरिया क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है। एंड द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जो वेस्ट साइड में जो रिवर्स हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वो साबरमती है जो आपके राजस्थान वाले पार्ट से, माही है, ब्रह्मपुत्र है, पेरियार हैं, ब्रह्मपुत्र और पेरियार जो केरल से ओरिजिनेट होती हैं और ये अरेबियन सी में ड्रेनेज होती हैं। और जो रिवर्स हैं ये आपकी तापी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं जो बाद में क्या होते हैं, अरेबियन सी में ड्रेनेज हो जाती हैं। तो नर्मदा रिवर और तापी रिवर दोनों ही वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो अरेबियन सी में ड्रेनेज हो जाती हैं। और नर्मदा रिवर है वो मध्य प्रदेश और गुजरात में फ़्लो करती है और आपकी नर्मदा जो आपकी तापी रिवर है वो मध्य प्रदेश में, गुजरात में और महाराष्ट्र में फ़्लो करती है। उसके बाद वेस्ट साइड से फ़्लो करती हुई अरेबियन सी में ड्रेनेज हो जाती है। और जो तापी रिवर है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 724 किलोमीटर। सो स्टूडेंट, दीज आर द फीचर ऑफ नर्मदा रिवर एंड तापी रिवर। ओके, हियर इज नर्मदा रिवर एंड हियर इज तापी रिवर and drain into Arabian Sea, and here is Ganga river, Indus river and the Brahmaputra river. Okay, and the Western Ghat, जो ये कोस्टल ये वाला जो एरिया यहाँ पे ये काफ़ी तो वाइड एरिया है, ये वाला नैरो एरिया है जिसकी वजह से यहाँ जो रिवर्स हैं उनकी लेंथ भी क्या होती है, काफ़ी कम होती हैं। ये दोनों रिवर्स यहाँ पे नर्मदा तापी क्या स्टूरीज बनाती हैं और जो आपकी वेस्टर्न घाट से जो रिवर्स फ्लो ओरिजिनेट होती हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज होती हैं और ड्रेनेज से पहले डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा वाला जो एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टुडे योर होमवर्क सॉल्यूशन, व्हाट इज़ अ रिवर सिस्टम? आंसर इज a river along with its tributaries may be called a river system. Name the tributaries which join Indus in Kashmir. Answer is the Jaskar, Nubra, Shyok and the Hunja are the tributaries which join river Indus in the Kashmir region. Name the city at which the Ganga which enter the plains from the Himalaya. Answer is Haridwar. Write the features of Ganga river. First, the length of the Ganga is 2500 kilometer and the headwater of Ganga called the Bhagirathi is fed by the Gangotri glacier and the main tributaries are Ghagar, Gandak, Yamuna and the Kosi. And the Ganga flow eastward till Farakka in West Bengal and the Brahmaputra river flows into the Bay of Bengal and formed delta. It is called Sundarban Delta and it is the world largest and fast growing delta. And question number 5th, what are the regulation of Indus Water Treaty of 1960? Answer is, according to the regulation of the Indus Water Treaty 1960, India can use only 20% of the total water carried by Indus River system. It is the regulation of Indus Water system. And next, write the feature of Indus River. Answer is, the river Indus rises in Tibet near Lake Mansarovar and the length of the river is 2900 kilometer. Main tributaries are Satluj, Byas, Ravi and Chenab, and the Indus plain has very gentle slope. The Indus flows southward and reaching the Arabian Sea east of Karachi. Okay student, firstly we recall location of Himalaya rivers and Peninsular river. Indus river originated from China, Tibet and it moved from west side and it entered into Jammu Kashmir, that it entered to Pakistan and it passes from Karachi, east of Karachi and then drain into Arabian Sea. And Ganga originated for Gangotri glacier, then it entered UP, Bihar, Jharkhand, West Bengal and drain into Bay of Bengal and form Sundarban Delta.
And the Brahmaputra river originates from China, Tibet, and it flows parallel to the east of the Himalayas mountain, and it takes U-turn from Namcha Barwa. Namcha Barwa is the mountain peak of India, and its height is 7,757 meter, and it takes U-turn from Namcha Barwa and enter into Arunachal Pradesh, and it is called Dihang, Dibang, Lohit, and it Assam, and it enter Bangladesh, and it drain into Bay of Bengal. And these are the Himalaya river and Peninsular river, Narmada and Tapi. Narmada and Tapi are west flowing river. Okay, Narmada river, and they make estuaries and they drain into Arabian Sea. And student, today your homework: name the major river of the peninsular India. From where does the Narmada river rise? Question number 3. Name the state through which the Tapi river flows. And question number 5. In which hills does the Tapi river flows? How does the Brahmaputra river enter India? Which are its tributaries? And question number 6. Write the feature of the Tapi river. And question number 6. What is the name of the Brahmaputra river in Tibet? And student, all question done in your fair notebook. Thank you.